خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ بورے والا میں درندہ سفید وحشی استاد کا ڈرامہ دھماکہ خیز. آپ کو بتائیں کہ طلبہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا انکشاف ہوا ہے. ملزم بیوی بچوں سمیت موقع سے فرار ہو گیا ہے. ابتدائی رپورٹ میں بچی سے زیادتی ثابت ہو گئی ہے. اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے. آج اس کے نمائندے شاہد سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میاں شاہد سلیم، بتائیے گا. جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے تھانہ فتح شاہ کی حدود میں واقع نواحی گاؤں ہے 329 ای وہاں پر پیش آیا ہے، جہاں پر جو ہے ایک درندہ صرف استاد اپنی 13 سالہ طالبہ کو جو ہے کئی ماہ تک جنسی زیادتی کا جو ہے وہ نشانہ بناتا رہا ہے، اور طالبہ کے حاملہ ہونے پر جب اس کا انکشاف ہوا ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں سمیت گاؤں سے جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے، جبکہ طالبہ کو جو ہے میڈیکل کے لیے تحصیل اسپتال بورے والا منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر ابتدائی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے اندر طالبہ کے ساتھ زیادتی جو ہے وہ بھی ثابت ہو گئی ہے، جبکہ پولیس جو ہے اس سے طالبہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ تو درج کر لیا ہے، لیکن کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود تاحال ملزم جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکا ہے. جبکہ جو طالبہ کے جو والد ہیں اس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گلزار جو ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ انصاف کی فراہمی، ملزمان کی گرفتاری کا جو ہے وہ جلد سے جلد کی جائے. جی بہت شکریہ شاہد سلیم. محکمہ محنت کی غفلت سے تحصیل رائے میں کم عمر بچوں سے جبری مشقت کا سلسلہ جاری ہے، جس پر سینکڑوں بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے. مزید بتائیں گے آصف نعیم شیخ. جی آصف. جی بالکل، اس وقت رائے میں محکمہ محنت کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے شہر کے تمام تجارتی مراکز میں کم عمر بچوں سے جبری مشقت کا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے. شہر کے تمام علاقوں میں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کے ہاتھوں میں اوزار اور برتن دیکھے جا رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں. آج وہ بچے جبری مشقت کرنے پر مجبور ہیں. رائے شہر کے مین بازار، تجارتی مراکز اور دیگر مارکیٹوں میں اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں بچے سکول نہیں جا رہے، بلکہ ان کے ہاتھوں میں کتابوں کی بجائے اوزار اور برتن تھما دیے گئے ہیں، جس پر محکمہ محنت کی غفلت دیکھی جا سکتی ہے. سنجیدہ حلقوں نے اس پر شدید احتجاج کیا ہے کہ ریونڈ کے سینکڑوں بچوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے، لیکن محکمہ محنت کے افسران سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں. ان کی کارکردگی صفر ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ محنت کے افسران جبری مشقت کا سلسلہ جو ہے اس کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ریونڈ کے سینکڑوں بچوں کا مستقبل بچ سکے اور وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکیں. جی ادھر سانگڑ شہر میں بائی پاسز کی خستہ حالی کی وجہ سے ٹریفک جام ہونا معمول بن گیا ہے. عوام نے انتظامیہ سے بائی پاسز کی جلد مرمت کا مطالبہ کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں عبدالرحمان خاص خیلی سے. جی عبدالرحمان. جی بالکل، شہر سانگڑ کے اطراف سے نکلنے والے جو بائی پاس ہے ان کی خستہ حالی کی وجہ سے اس وقت شہر سانگڑ میں بڑی گاڑیوں کی گزرنے کی وجہ سے انتہائی ٹریفک جام ہو جاتی ہے، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرپور خاص بائی پاس روڈ، حیدرآباد بائی پاس روڈ، سنجورو بائی پاس روڈ، نواب شاہ بائی پاس روڈ، چوٹیارو بائی پاس روڈ، اس وقت تمام جتنے بھی بائی پاس روڈ ہیں اس کی خستہ حالی کی وجہ سے بڑے بڑے گڑھے بن چکے ہیں، جو کہ پلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور یہاں سے جو بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں وہ آئے روز حادثات کا باعث بنتی ہیں، جس کے باعث جو گاڑیاں بائی پاس نہ آنے کی وجہ سے وہ شہر کا رخ کرتی ہیں، جس کے باعث جو کہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اور جو چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں سفر کرنے والے لوگوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے ضلعی انتظامیہ ڈسٹرکٹ ہائی وے سے کہ فوری طور پر جو بائی پاس روڈوں کی خستہ حالی ہے اس کی ریپیئر کروا کے مرمت کروا کے دی جائے. دنیا پور کی سڑکوں پر تجاوزات سے روڈ بلاک ہونا اور لڑائی جھگڑے روز کا معمول بننے لگے ہیں. اس بارے میں مزید جانیں گے آج کے نمائندے چودھری زاہد محمود سے. جی چودھری زاہد محمود. بالکل، اس وقت دنیا پور میں تجاوزات کا مسئلہ گمبھیر شکل اختیار کر چکا ہے. شہر کی کوئی بھی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں پر تجاوزات نہ ہو، جس کے اس وقت شہر کی سڑکیں جو ہیں اڈوں میں تبدیل ہو چکی ہے. آج بھی مرکزی کاظمی چوک دنیا پور میں دو موٹر سائیکلوں میں جو ہے کھڑا کرنے پر جھگڑا ہوا ہے. جو مرکزی کاظمی چوک شہر کا جو ہے مزار کا منظر پیش کرنے لگا، جہاں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی. اس کے بعد وہاں پر جو ہے پولیس اہلکار پہنچے ہیں، ان کی بھی جو ہے وہاں پر افراد کے ساتھ تکرار ہوئی ہے. افسران ہیں وہاں پہ خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں. ضرورت سمرتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر ملتان نوٹس لیں اور جو ہے اینٹی انکروچمنٹ کے نااہل عملہ تجاوزات کا صفائی کرانے میں ناکام ہو چکا ہے، یہ کارروائی کی جائے. جی
जेहलम के इलाके मुस्लिम टाउन, मदीना टाउन और ढोक मकरब में कूड़े के ढेर लग गए हैं और सीवरेज के पानी की निकासी न होने के बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। जी बिल्कुल, ढोक नेक आलम, मुस्लिम टाउन, मदीना टाउन की गलियां सीवरेज के गंदे पानी से भरी पड़ी हैं। यहाँ से बच्चों का, बुजुर्गों का, खवातीन का गुजरना माहौल हो चुका है। नमाजी परेशान है, लोग सरापा एहतजाज हैं, गंदगी कूड़े क्रिकेट के अंबार हैं। इनसे बात करते हैं। हर ऑफिसर को, हर आदमी को, MNA MPA तक हम लोग गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बहुत ही बुरी हालत है। नमाज पढ़ने के लिए जाना होता है मस्जिद में, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, खासकर बच्चियों ने। बहुत ही थोड़ी सी बारिश हो जाए तो इतना पानी निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं, बहुत अरसे से ये बंद है। हर तरफ हमें कूड़े क्रिकेट गंदे पानी के जोड़ दिखाई दे रहे हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं? जी हम मेहरबानी करें, ये इस मसले का हल करें, कमेटी वालों को हिदायत दें कि ये इस निकासी का बंदोबस्त करें। जी बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त भी मेन रोड पे गंदा बदबूदार पानी सीवरेज का खड़ा हुआ है, गटरों का पानी है। इंतहाई जो है नागुफ्ता बेसूरत हाल है, वो बाई अमराज तेजी के साथ पैर हैं। यहाँ से गुजरना जो है इंतहाई दुश्वार हो चुका है। शहरी परेशान है। इन्होंने मुतालबा किया है आला हुकाम से कि नोटिस लेकर निकासी आप का बंदोबस्त किया जाए। जी आजाद कश्मीर में महंगाई ने आम तबके का जीना मुश्किल कर दिया है। अशिया खुनोश की कीमतों को पड़ लग गए हैं। आलू, टमाटर ने सेंचुरी कर ली है। दीगर सब्जियों के नर्ख भी कई गुना बढ़ गए हैं। सरकारी नर्खनामे पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। इंतजामिया गायब है। मजीद जान लेते हैं आज इसके नुमाइंदे इमनाज खान से। जी इमनाज। जी बिल्कुल, आजाद कश्मीर भर में इस वक्त महंगाई जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। महंगाई का जिन जो है वो बोतल से मसलसल बाहर है। मसनूई महंगाई भी एक तरफ बहुत ज्यादा है। अगर बात की जाए फल और सब्जियों की तो आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है वो जवाब दे चुकी है। दूसरी जानब हमने देखा है कि जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो फाल नहीं हैं, जिसकी वजह से जो डीलर और जो दुकानदार हैं वो शहरियों को महंगे दामों जो चीजें फरोख्त करते हैं। हमने देखा है यहाँ पर जिले इंतजामिया भी जो है वो मुतर्रक नजर नहीं आ रही। दूसरी जानब जब हमने यहाँ पर दुकानदारों से बात की तो उनका ये कहना था कि डीलर हजरात जो हैं वो हमें इंतजामिया के रेटों से भी ऊपर होलसेल रेट में देते हैं, जिसकी वजह से महंगे दामों बेचना हमारी मजबूरी बन जाती है और इंतजामिया जो है वो डीलरों को पकड़े और डीलर जो है वो मसनूई महंगाई का सबब बनते हैं। जी मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला कॉमर्स कॉलेज से महरूम है। तलबा कॉमर्स की तालीम के लिए दूर दराज शहरों में जाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जो 7 लाख से ज्यादा की आबादी पर मुश्तमिल है। ये तहसील आज के दौर जदीद में भी कॉमर्स कॉलेज से महरूम है। तहसील जलालपुर में 2009 में कॉमर्स कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी और 4 दीवारी भी तामीर करवाई गई थी, लेकिन 12 साल गुजरने के बावजूद अभी तक कॉमर्स की इमारत तामीर नहीं की गई और न ही इस पर किसी मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदों ने तवज्जो दी है। कॉमर्स कॉलेज की अदम फरहमी के बायस तहसील जलालपुर पीरवाला के तलबा जो कॉमर्स की तालीम हासिल करना चाहते हैं दूर दराज के शहरों में जाने पर मजबूर दिखाई देते हैं और हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर हैं। तलबा ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जनूबी पंजाब की एक अहम तहसील जलालपुर पीरवाला में कॉमर्स कॉलेज के क्याम को यकीनी बनाया जाए ताकि तलबा कॉमर्स की तालीम अपने शहर में ही हासिल कर सकें। बदीन का रुख करेंगे। बदीन के चांटिया नगर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है और 2 क्लासरूम्स में 250 बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं आज के नुमाइंदे राना अब्बास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन के इलाके चांडिया नगर में, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल जो है वो मुकम्मल तौर पर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर पानी का अखराज ना होने के बायस मुकम्मल तौर पर ये स्कूल जो है वो पानी में डूब चुका है, जबकि इस स्कूल में 2 क्लास रूम है और 250 के करीब बच्चे जो है यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाऊंगा कि हुकूमत सिंध ने यहाँ पर स्कूल खोलने की इजाजत तो दे दी है SOPs के तहत, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुंजाइश ज्यादा बच्चे हैं क्योंकि इलाके में करीबी कोई और दूसरा जो है वो स्कूल मौजूद नहीं है, जिसके बाद यहाँ पर तालीम हासिल करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मौजूद असातिज़ा और इलाका मकीन से हम बात करेंगे कि वो उनका क्या कहना है, क्या क्या यहाँ पर सहूलियात हैं, कैसे वो यहाँ पर बच्चों को तालीम दे रहे हैं। हमारे स्कूल को अभी खुलते हुए या बनते हुए 10 साल हो गए। ये तो मुझसे हमारे स्कूल में पानी जो ये गटर नाले का निकाल है नहीं, हमारा पानी हमारे स्कूल में खड़ा रहता ही रहता है। हमारा बच्चे जो अभी नीचे फर्श पे बैठे हुए हैं और नीचे से पानी निकल रहा है, अभी फर्श भी हमारे वो भी टूटा हुआ है सारा। गवर्नमेंट की हम अपील है DC साहब को हमारे को फर्नीचर दिलाए और पानी का निकाल करे। हमारे पड़ोस में कोई खंभा वगैरह नहीं है, इस वजह से कुंडियों वाली लाइट है
कभी लगी रहती है, कभी जल जाती है और हमारे स्कूल में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो लाइट दिलवाए। इस वजह से बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी तो मजबूरी, हमारी ड्यूटी हमें करनी पड़ती है। बिल्कुल, उस्ताद का भी यही कहना है कि यहाँ पर 250 के करीब जो है बच्चे तालीम हासिल करते हैं। यहाँ पर कोई बिजली का निजाम है नहीं, कुंडा सिस्टम यहाँ पर चलता है, तो कभी इनकी लाइट होती है कभी नहीं होती है। हालांकि हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर लाइट समेत दीगर सहूलियात जो है मुयसर करके दे। ये दूसरा रूम है जहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्चे कैसे जमीन पर बैठे हुए और तालीम हासिल कर रहे हैं। वजह यही है कि एक यहाँ पर क्लास रूम की जो है वो गुंजाइश नहीं है, दूसरा यहाँ पर फर्नीचर का भी किल्लत है, जिसके बायस 250 के करीब बच्चे इस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर पानी ज्यादा होने के बायस जो सीवरेज का पानी है, जिसके बायस बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, जिल की बीमारियां हो गई, वो फैल रही हैं। जबकि इलाका मकीन का ये भी कहना है कि स्कूल में किसी भी किस्म की कोई बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं है। यहाँ पर जो स्कूल का मेन दरवाजा है वो तक नहीं है, दीवारें टूटी हुई है, यहाँ का रिकॉर्ड जो है वो भी महफूज नहीं हो सकता है। तो इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि बराए मेहरबानी इस स्कूल से सीवरेज के पानी का अखराज किया जाए, साथ में यहाँ पर दीगर जो बुनियादी सहूलियात है वो दी जाए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोरोना के बाद ज्यादातर स्कूल जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। हुकूमत यहाँ पर जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उनमें जो है वो सहूलियात नहीं दे सकती, जिसके बाद वो ज्यादातर स्कूल बंद कर देती है। तो इलाका मकीन यहाँ पर मुतालबा करते हैं कि इस स्कूल समेत दीगर जो स्कूल हैं उन्हें बुनियादी सहूलियात दी जाए, ताकि यहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख कर बेहतर माहौल में आगे बढ़ सकें और पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के लिए आप देखते रहिए आज ही। वेलकम बैक। और आपको शहर कायद से खबर दें कि कराची के इलाके गुलशन हदीद में गरज चमक के साथ तेज बारिश इस वक्त हो रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर कायद का इलाका है गुलशन हदीद, जहां पर गरज चमक के साथ तेज बारिश जारी है। इस बारे में तफसील जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शहरियार साजिद से। जी शहरियार साजिद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल मोहनिस, भारत का एक कम भारत में मौजूद एक हवा का कम दबाव जो था उसके जेर असर हम देख रहे थे कि ठट्टा बदीन इन इलाकों के अंदर जो है वो गरज चमक के जो है वो बादल बने हुए थे और आज सुबह से वहां पर जो बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। और देखते देखते हैदराबाद नूरियाबाद के बाद जिसने कराची का रुख किया और इस वक्त कराची में गुलशन हदीद बिन कासिम मिडिल टाउन में जो है इस वक्त गरज चमक के साथ जो है वहाँ पे बारिश हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शहर की तरफ भी बढ़ेगा और हम देख रहे हैं कि मदी के कुछ इलाकों में भी तेज हवाएं जो है वो चलना शुरू हो गई। और कहा यह जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि हो सकता है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तेज जो है वो बारिश जो है वो शुरू हो जाए। और ये हवा का दबाव जब तक मौजूद रहेगा गर्मी की शिद्दत जो है इसी तरह बरकरार रहेगी। लेकिन इस वक्त बारिश के बाद गुलशन हदीद बिन कासिम का जो इलाका है वहाँ पे मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में गरज चमक के साथ बारिश हुई है और इस बारिश के बाद मौसम बेहतर हो गया, क्योंकि गर्मी का जोर ज्यादा था और वो गर्मी का जोर इस इलाके में अब कम हो गया है। खबर दें आपको कि कनकोट सिविल अस्पताल में 2 एम्बुलेंस और 6 सुजुकी गाड़ियां खड़े खड़े बर्बाद हो गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज उसके नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चलूं कि कंदकोट सिविल अस्पताल में 2004 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 6 छोटी गाड़ियां और 2 बड़ी एम्बुलेंस फराम की गई थी ताकि यहाँ की आवाम को फायदा हासिल हो सके। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 10 से 15 साल गुजर जाने के बावजूद ये सरकारी गाड़ियां कचरे की नजर कर दी गई हैं। ये अस्पताल के अकब में ऐसे ही झाड़ियों में छोड़ दी गई। इनका जो भी सामान था वो निकाल दिया गया और ये गाड़ियां आप देख सकते हैं कि सरकारी गाड़ियां इनके न ऑक्शन हो सके और ना ही ये रीसाइकल होकर ये नई गाड़ियां प्रोवाइड की गई हैं। ये सारी इंतजामिया की लापरवाही नजर आती है। जिस अस्पताल की सरकारी गाड़ियां खुद इस हालत में हो तो यहाँ की आवाम का इलाज क्या हो सकता है। यहाँ जब एक्सीडेंट होते हैं, हादसा होते हैं तो लोग जो है कि रक्षों पर जख्मियों को और लाशों को उठा कर ले आते हैं। यहाँ से DHO से जब हमने राब्ता करने की कोशिश की, मौकिफ लेने की कोशिश की, तो उन्होंने मौकिफ देने से भी इनकार कर दिया। ये गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां ऐसे ही पड़ी हुई हैं, ना इनकी कोई देखभाल है। और मैंने तो ये भी सुना है, जरा से मालूम हुआ है कि इन सरकारी गाड़ियों की मद में फ्यूल भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो ये लापरवाही है, दूसरा फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर आवाम की सहूलियात के लिए ये गाड़ियां किसी काम के न आ सकी। यहाँ की आवाम ने ये मुतालबा किया है कि इन सरकारी गाड़ियों की इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनकी मद में जो फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये गाड़ियां मेंटेनेंस करके यहाँ की आवाम के लिए जो है कि सहूलत के लिए फराहम की जाएं। जी, पाकिस्तान रेलवे में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ऑल पाकिस्तान मजदूर ग्रैंड यूनियन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। इस बारे में तफसीलात जानते हैं सक्खर से आज न्यूज के नुमाइंदे जमील मुगल से। जी जमील मुगल, मुतालबात क्या हैं?
कि रेलवे के कुछ शोबों को जो है प्राइवेट किया जा रहा है। मजदूरों की बड़ी तादाद जो है सकत प्रेस क्लब पर यहाँ पे मौजूद है और एहतियाजी मुजाहरा कर रही है कि रेलवे को जो है प्राइवेट करने के लिए जो है मनसूबाबंदी की जा रही है, जो हम किसी हुकूमत पे नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर रेलवे प्राइवेट हो गई तो रेलवे में जो जितने भी मजदूर काम करने वाले हैं उन्हें निकाला जाएगा और मनपसंद लोगों को जो है वो भर्ती किया जाएगा, तो यूं बेरोजगारी में इजाफा होगा। मजदूर रहनुमा काजी नेमतुल्लाह से बात करते हैं। हमारे मसाइल तो बहुत है जनाब, लेकिन अभी रिसेंटली एक हमारी एक रेलवे अस्पताल है जो फौज के बाद हमारी जो मेडिकल होती है जो कैंडिडेट की, वो बहुत सख्त मेडिकल होती है कि जिसमें ड्राइवर भी पास होते हैं, फायरमैन भी, केबिन मैन भी, गेट मैन की, उनकी बड़ी सख्त मेडिकल होती है। लेकिन उन अस्पतालों को भी बेच डाल रहा है, इसने कोई चीज नहीं छोड़नी। रेल को सवाती ने तबाह कर दिया है। अपने अफसर मर्जी के बड़ी भारी मुआवजे पे उनको HR लगाकर रेल का और खाना खराब कर दिया। लेकिन मजदूर कम से कम है, अफसर ज्यादा भरे हुए। को जो है वो प्राइवेट ना किया जाए, रेलवे के जो जितने भी शोबे हैं उनको प्राइवेट ना किया जाए। जिस तरह सिविल अस्पताल, जिस तरह रेलवे अस्पताल है और दीगर अस्पताल है उनको प्राइवेट किया जा रहा है, तो ये शदीद मजम्मत के लिए सख्त फैसल पहुंचे। जी खैरपुर का रुख करेंगे। खैरपुर में शेख अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का ओल्ड नेशनल हाईवे पर एहतजाज, इंतजामी के खिलाफ नारेबाजी भी की। खैरपुर शेख अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का इंतजामी के खिलाफ एहतजाज, यूनिवर्सिटी की बसें खराब होने का शिकवा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शेख अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को हटाया जाए। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ भलवाल से आपको खबर दें कि भलवाल की मरकजी सब्जी और फ्रूट मंडी, जहां पीने के पानी की फरहमी और नकासियात के मसाइल का सामना है, वहीं पार्किंग फीस की वसूली और तजावुजात ने भी खरीदारों को मुश्किल में डाल दिया है। रिजवान अहमद सागर की रिपोर्ट देखिए। भलवाल की मरकजी सब्जी और फ्रूट मंडी सरगोदा रोड पर लकमोड़ और गुजरात रोड पर हेड फकीरियां तक के 100 से जायद देहात के दुकानदारों की खरीदारी का मरकज है। यहाँ पर पार्किंग का कोई बाकायदा इंतजाम मौजूद नहीं, लेकिन पार्किंग फीस जोर शोर से वसूल की जा रही है। जी भलवाल मंडी 20 रुपए पर्ची सब मंडी आन दे ते वे जान दे, पार्किंग जड़ी है वो नहीं है इतने ने जी एक साइड की पर्ची होनी चाहिए आन दी जान दे। मार्केट मंडी सब्जी मंडी में जब दाखिल होते हैं ना, जब इधर से सामान लेके जाते हैं तो हर फेरे के 20 रुपए के वसूल करते हैं। जितनी दफा भी आओ उतनी दफा के पैसे देने पड़ते हैं। आगे तो इनका बंदा आदमी एक दफा आया पैसे दे सारा दिन के, इनका 6 चक्कर लगे तो 6 दफा पैसे लेते हैं। ये कल स्टैंड वाले साड़ियां चीजां चोरी होवन तो कोई सानू गाह भी नहीं पांदे, ओही साडे कोलों 10-20 रुपये लैंदे नो। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਟੇਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋ ਸਪੀਕਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਟਨ ਦੇ ਕਾਟਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਮੁਲਕ ਲੈ ਵੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ लिफ्ट नहीं कराते। मंडी में तजावजात की भी भरमार है, जिससे पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क ते नहीं माल लद्या जाता, सारा राह बंद होंदा है, कंड मगर माल चुकना होंदा है, पेटियां किल चुभदे कंड दे विच, अन्नी दूर जाइए दर्द होंदी कंड च, कहंदे बाहर लदो, सारी राह बंद कीता। हुण तुसीं वेख भी सकदे हो सारा राह बंद है, बंदा औखा लंघदा विचों दी। चेयरमैन मार्केट कमेटी सैयद नदीम अब्बास शाह और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जावेद चौधरी को चाहिए कि वो मरकजी सब्जी और फ्रूट मंडी के मसाइल हल करने के लिए फौरी इकदाम करें, ताकि खरीदारी के लिए आने वालों की मुश्किलात कम हो सके। रिजवान अहमद सागर, आई न्यूज भलवाल। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट का ईदगाह मैदान भी इंतजामिया की नाअहली की नजर हो गया। बारिश का गंदा पानी ताहाल जमा है, अवाम भी गंदगी और बदबू से परेशान है। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। कराची में बारिश को कई रोज गुजर गए, लेकिन बारिश का पानी अब तक साफ न किया जा सका। गार्डन ईस्ट के ईदगाह मैदान में जमा पानी ने मैदान का होलिया ही बिगाड़ दिया। इलाका मकीन कहते हैं पूरे शहर की सूरत हाल अबतर है, ताहम कोई देखने वाला ही नहीं है। अभी इसका हालत आप खुद देख रहे हैं ना, जब से बारिश हुआ है यही हालत, कोई इंतजामिया नहीं है इधर। जो है ना कुछ दिन हुए हैं ये पानी नहीं निकाल रहे हैं इंतजामिया, बच्चे जो है ना बाकायदा इधर जो है ना डूबते हैं। कराची शहर की सड़कें, गलियां और मोहल्ले तबाही की दास्तान सुना रहे हैं, लेकिन ना कोई देखने वाला है और ना ही सुनने वाला। अनुषा जाफरी, आज न्यूज, कराची।
राह वाली की मशहूर कुल्फी का मुनफरिद जायका जीटी रोड के मुसाफिरों को रुकने पर मजबूर करता है। गुजरावाला से रिपोर्ट करेंगे राजा हबीब। गुजरावाला के इलाके राहवाली की मशहूर कुल्फी दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को भी ब्रेक लगाने पर मजबूर कर देती है और वो यहाँ से कुल्फी खाए बगैर आगे नहीं बढ़ते। मौसम कोई भी हो, राहवाली की कुल्फी खाने का अपना ही एक मजा है। यहाँ से गुजरते हुए लाजमी ब्रेक लगा के कुल्फी को एंजॉय करते हैं। हम इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे तो राहवाली की कुल्फी बहुत मशहूर है, तो इसलिए यहाँ कुल्फी खाने के लिए रुके। शहरी कहते हैं कि मुनफरद जायके और मेयार की बदौलत राहवाली की कुल्फी अपना सानी नहीं रखती। दूध, बादाम और खोए वाली इस कुल्फी को खाने के लिए जहाँ हर वक्त बच्चों, बड़ों और खवातीन का रश लगा रहता है। मैं अपने बाबा के साथ राहवाली की मशहूर कुल्फी खाने आया हूँ। कुल्फी फरोख्त करने वालों का कहना है कि मौसम कोई भी हो, इस सौगात की मांग में कमी नहीं आती, जिसे जदीद प्लांट के जरिए पूरा किया जाता है। खोए मलाई वाली कुल्फी जहाँ राहत बख्शती है, वहीं जायके में भी अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ राजा हबीब, आज न्यूज, गुजरावाला। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.com। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज।